देखो यहाँ पर we have seen there is a single diode used over here. There is a single diode which has been used over here, and this diode will be used to convert the AC signal into DC signal. During positive half cycle of the input supply, the diode will become forward bias and you will receive output as shown in figure. Here you are going to receive your output voltage, because when the positive supply is applied, the diode becomes forward bias, the diode will conduct, the current will flow through the circuit and output will be available. The current will flow from A to diode to X to Y to B as shown in figure. Okay. Next, during negative half cycle what happens? B becomes positive with respect to A, and due to this the diode will become reverse bias. As diode becomes reverse bias, it will not conduct and it will produce zero current. The current will not flow through circuit, and due to which over here what will happen? The output will remain 0. Now during next positive half cycle, once again diode will become forward bias, it will conduct and you will be able to see the output voltage across the load resistor, and in this manner you can find the AC signal has been converted into DC signal. हमारा प्रॉब्लम ये था कि if we see the waveform, we can find here that during the 50% of the time, we can see here during 50% of the time the output is not available. So I can write down there is no output here for 50% of the time. So anyhow that is the reason it is called as half wave rectifier. तो अभी जाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर को देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर. सो चलो चलते हैं. So let us move on to our next topic and understand what do we mean by a full wave rectifier. तो ये क्या है? This is your input voltage. इसको बोला जाता है VAC. इसके बाद में आएगा प्राइमरी वाइंडिंग. Primary winding of step down transformer. Then these two vertical lines, they are indicating core of a transformer. क्या indicate करते हैं वो? Core of a transformer. Then secondary winding. अभी यहाँ पर एक बात का ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर समझ लेना कि this secondary winding I am drawing, this is a very specific type of winding. This winding or this transformer is known as center tap transformer. So what is a speciality about a center tap transformer? Center tap transformer will have a tapping at the center. Tapping at the center का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा बताता हूँ आपको स्टूडेंट्स. मुझे थोड़ा सा डायग्राम इसको एडिट करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आई हैव टू शो द वाइंडिंग अप टू द सेंटर. So this center tap transformer will have a tap at a center and the transformer windings are divided into two parts. सवाल आता है सर टू पार्ट्स का मतलब आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो? वाइंडिंग इज डिवाइडेड का टू पार्ट्स का मतलब होता है ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है सेंटर में, दिस इज अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट वाई. लेट अस से दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट वाई. नाउ ओवर हियर this particular point is known as point X
and this point is known as point Z. This point is known as point Z. So let us see, let us complete the diagram. यहाँ पर एक सर्किट कैसे बनता है वो देखेंगे थोड़ा सा. We are going to use two diodes over here. First diode at the upper side of the circuit, second diode at the lower side of the circuit, and the load resistor will be at the center. Now let me complete the remaining diagram. The upper diode is known as diode D1. The lower diode is known as diode D2. This particular point at center, let us name this point. So let us name this point W. The load resistor indicated by RL. So this is how full wave rectifier center tap circuit is. समझा क्या बच्चों? वो X थोड़ा सा छोटा हो गया है, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ. ओके, अभी यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसके 3 कंडीशन समझाता हूँ स्टूडेंट्स. तो एक बात याद रखना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएगा? तो आपका पॉइंट X है, दिस विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू Y एंड Y विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू Z. ये कंडीशन को याद रखना. नाउ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. आपका Z जो है, दिस Z विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू Y एंड Y विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू X. बच्चों, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. तो यहाँ पर ये सर्किट हमारा कंप्लीट होता है बच्चों. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम हमने कल देखा था, that the input voltage will be lesser than the output voltage. सेंटर टैप में क्या होता है? 2 टैप्स हम लोगों को दिख रहे हैं. अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडीशन देखो बच्चों. पॉजिटिव हाफ साइकिल में यू कैन सी हियर योर X is positive with respect to terminal Y. Your terminal X is positive with respect to terminal Y, whereas your terminal Y is positive with respect to terminal X. अभी ये सर्किट में देखिए बच्चों, अगर आपने ये सर्किट में देखा ना तो आपको समझ में आ गया. ये यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू Y, तो ये डायोड D1 क्या होगा बच्चों? कंडक्ट होगा. जो डायरेक्शन में दिखाया है ना, वो डायरेक्शन में ये डायोड D1 क्या होगा? कंडक्ट होगा. द डायोड D1 विल कंडक्ट एंड द करंट विल फ्लो लाइक दिस फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट Y, जैसे यहाँ पर, जैसे वहां पर दिखाया हुआ है. तो डायोड D1 का कंडक्शन कंफर्म है, लेकिन डायोड D2 कंडक्ट होगा क्या? देखो डायोड D2 का क्या सिचुएशन है. इन केस ऑफ डायोड D2, द एनोड इज लेस पॉजिटिव एज कंपेयर टू कैथोड, तो इस वजह से डायोड D2 कंडक्ट नहीं होगा. तो यहाँ पर सिचुएशन लिखेंगे. क्या होगा सिचुएशन जो हम लोगों ने अभी अभी देखा? नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा? डायोड D1 पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? डायोड D1 will remain on and diode D2 will remain off. I hope all of you are getting what I am trying to explain. वही अभी नेगेटिव हाफ साइकिल में देखो क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में Z will become positive
In case of negative half cycle, Z will become positive as compared to the terminal Y. Z will become positive as compared to terminal Y. तो आप ये समझो कि इस कंडीशन में कौन सा डायोड ऑन होने वाला है, कौन सा डायोड ऑफ होने वाला है. So during negative half cycle, what will happen? We have seen diode D1 will become reverse bias and diode D2 will become forward bias. So in this manner, I can conclude over here, in case of negative half cycle, diode D1 will remain off. Diode D1 कैसे होगा? Off. And diode D2, this will remain on. Z becomes positive with respect to Y. The current will start from, अभी कौन पॉजिटिव हो गया? Z पॉजिटिव हो गया Y के कंपैरिजन में, और Y पॉजिटिव हो गया X के कंपैरिजन में. ये यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि Z इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू Y एंड Y इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू X. तो D1 तो बंद हो गया, तो करंट D2 से जाने वाला है. तो करंट देखिए कैसे जाएगा. करंट विल फ्लो from point Z to D2 to W. इसके बाद में this will move from this point to W. इसके बाद में क्या होगा? It will move from W to RL to Y. W to RL to Y क्यों जाएगा वो? क्योंकि आपका D1 तो बंद है. D1 बंद है मतलब करंट को D1 से जाने का कोई चांस नहीं है. तो आपको डायरेक्शन समझा करंट का. डायोड D2 विल बी ऑन, द करंट विल फ्लो फ्रॉम Z टू D2 टू W टू Y. और ऊपर के सर्किट में से कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है. तो अभी ये भी करंट का डायरेक्शन नीचे जाके लिख लेते बच्चों. याद रखना है आपको करंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स एंड फ्रॉम वेयर इट एंड्स. सो करंट स्टार्ट्स फ्रॉम विच पॉइंट? It will start from Z. Z के बाद में D2, D2 के बाद में W, W के बाद में RL और RL के बाद में Y. तो यहाँ पर भी गौर करने वाली बात यही है कि जब आप निगेटिव हाफ साइकिल में देखते हो तो भी आपका जो करंट फ्लो होता है, यू कैन सी हियर द करंट फ्लोज फ्रॉम W टू RL टू Y. इसके वजह से क्या होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन चीज हमको देखने को मिलती है कि वेदर इट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, द करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टर्मिनल W टू Y. The current will always flow from terminal W to terminal Y, and that is the reason you can say this terminal is always positive, this terminal is always negative, and the voltage across this RO can be given as V0 और VDC. I hope मेरी बात आपको समझ में आ गई. मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके दिमाग में ये चीज़ चले जाए. तो वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों. आप सभी लोगों को मालूम है इनपुट वेवफॉर्म कहाँ ड्रॉ की जाती है और आउटपुट वेवफॉर्म कहाँ ड्रॉ की जाती है. यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा मेरी इनपुट वेवफॉर्म. इनपुट वेवफॉर्म जो है वो कौन से टाइप का वेवफॉर्म है? टाइप मतलब दो टाइप होता है, AC और DC. तो इनपुट वेवफॉर्म कौन से टाइप का आएगा? AC टाइप का. AC टाइप आएगा मतलब उसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, एक नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा. देखेंगे अभी AC वेवफॉर्म कैसे होता है. पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल. दिस इज गोइंग टू बिकम योर इनपुट वेवफॉर्म. बराबर है. नाउ आउटपुट वेवफॉर्म में क्या होगा? अभी यहाँ पर मैं धीरे धीरे लिखना चालू करता हूँ कि वेवफॉर्म कौन सा है ये. तो ये है मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल. बराबर है. ये ऊपर है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे है नेगेटिव हाफ साइकिल, वापिस ऊपर है मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल. अभी मुझे बताइए पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है. हमने यहाँ पर सब देखा है. डायोड D1 कैसा है? ऑन है. डायोड D2 कैसा है? ऑफ है. करंट कैसे फ्लो हो रहा है? देखो यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं. करंट कैसे फ्लो हो रहा है दिख ही रहा है हमको. करंट फ्लो होने का डायरेक्शन ये यहाँ पर नोटिस करना. ये यहाँ पर करंट फ्लो होने का डायरेक्शन दिखाया हुआ है. X to D1 to W to R to RL to
y, और नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल एज इट इज ऊपर के साइकिल में से नीचे पे आ जाएगा। ऊपर का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल एज इट इज आउटपुट में आएगा। तो ये रहा मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये रहा मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मेरा एज इट इज आने वाला है आउटपुट में। तो मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल बन गया। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन भाई साहब ऑन है और कौन ऑफ है, आपको मालूम है। पॉजिटिव में कौन ऑन है, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। पॉजिटिव में कौन ऑन है, पॉजिटिव में D1 ऑन है, पॉजिटिव में D1 ऑन है, और ऑफ कौन है पॉजिटिव में, D2 ऑफ है। D1 ऑन है, D2 ऑफ है। और इसी पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट कैसे फ्लो हो रहा है सर्किट से, हम सभी लोगों ने देखा है। x, यहाँ पर लिखूंगा मैं करंट कैसे जा रहा है। वो करंट जाएगा पहले x, फिर D1, फिर W, फिर RL, और फिर टर्मिनल Y। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल का कार्यक्रम। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी सेम होता है। डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मुझे मेरा ये जो साइकिल है वो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ चीज़ें अलग लिखनी है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑन कौन हो रहा है, D2। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरा D2 का स्टेटस है ऑन, और मेरा D1 का स्टेटस है। बच्चों ये मैं क्यों कर रहा हूँ ना, तो एग्जामिनर को ना डायग्राम देख के समझ में आ जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी बोलिए करंट का डायरेक्शन याद ही हो गया रहेगा आपको। करंट का डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, टर्मिनल Z से स्टार्ट होगा, Z to Y जाना है उसको। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम टर्मिनल Z टू D2 टू W, बाद में RL, बाद में Y. So you can find the negative cycle has also been converted into the positive cycle here, and during next positive half cycle the same scenario will repeat, and you are going to get the rectified half cycle as shown in figure. So I can once again write down here the situation. Diode D1 is on and diode D2 during the positive half cycle is off. Students, ये रहा आपका फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। ये आपके फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर का पूरा कुंडली आपके सामने मैंने पुटअप कर दिया है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट, सर ये अभी इतना अच्छा काम करने वाला अपने पास रेक्टिफायर था, तो वो आपने कल जब दूसरे टाइप का रेक्टिफायर समझाया तो उसमें आपने हम लोगों को ब्रिज वेव रेक्टिफायर समझाया। तो वो ब्रिज वेव रेक्टिफायर लाने का क्या कारण था, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि आपको वो ब्रिज वेव रेक्टिफायर लाना पड़ा? उसका एक सिंपल सा रीज़न है बच्चों। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो आप कितना पकड़ पा रहे हो मुझे। अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो गड़बड़ होती है ना, ये यहाँ पर होती है। ये देखो, ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, आपका सिर्फ डायोड D1 कंडक्ट हो रहा है, और ये जो यहाँ पर आपको नेगेटिव हाफ साइकिल दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपका डायोड D2 कंडक्ट हो रहा है। मतलब इसका एक प्रॉब्लम ये है कि एट अ टाइम दोनों में से एक ही डायोड आपका कंडक्ट होता है, और सेंटर टैप होने की वजह से क्या होता है कि आपको ये जो यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा ना, ये जो यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है ना, ये आपको मिलता है ओनली VM। जबकि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उसके लिए मुझे आपको ये सेंटर टैप का कोर अलग से निकाल के दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, सपोज ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, मैं आपको ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप का वाइंडिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये मैं सिर्फ सेकेंडरी साइड ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर आपको जस्ट समझाने के लिए। तो अगर आपने इस तरीके से यहाँ पर एक सेकेंडरी वाइंडिंग ड्रॉ किया, बराबर है,
टर्मिनल भी वही ले रहा हूँ जो आपको वहाँ पर मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। तो हमने देखा था सेंटर टैप में के टर्मिनल्स, हमने देखा था ये जो टर्मिनल है इसको हमने बोला था पॉइंट एक्स। बाद में यहाँ पर सेंटर में जो टर्मिनल था उसको हमने क्या बोला था, याद है क्या किसी को? सेंटर वाले टर्मिनल को क्या बोला था? वाई। सेंटर वाले टर्मिनल को बोला था वाई। तो ये जो सेंटर का टर्मिनल है इसको मैंने बोला था वाई, और ये जो टर्मिनल है इसको मैंने बोला था जेड। अभी प्रॉब्लम देखो क्या होता है, जब आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की बात करते हो ना स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर एक और आपने सेंटर में इसको टैप करके रखा है। ये सेंटर में आपके पास एक और टैपिंग आ गई। ये वाई को वहाँ डाल देता हूँ मैं, जाने दो, आप समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देखना कि ये जो वोल्टेज है ना आपका, ये VXY का वोल्टेज है, ये VXY। तो ये VXY का वोल्टेज जो है, ये VXY का वैल्यू रहेगा 5 वोल्ट। ओके, और वो टैपिंग सेंटर में करने की वजह से क्या होता है, ये जो आपका VYZ वोल्टेज आता है ना, ये वोल्टेज भी आएगा 5 वोल्ट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो VYZ का वैल्यू 5 वोल्ट आया, VXY का वैल्यू कितना आया? 5 वोल्ट आया। ओके, लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो मेरा टोटल वोल्टेज आएगा, ये ऊपर से लेके नीचे तक, ये जो मेरा टोटल वोल्टेज आएगा ऊपर से लेके नीचे तक, ये जिसे मैं नाम दूंगा VXZ। बच्चों जरा बताओ ये कितना आएगा VXZ? तो ये कितना आएगा? 10 वोल्ट। ओके, ये कितना आएगा? 10 वोल्ट। मेरे ख्याल से आपको मेरे अभी मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ ये चीज समझ में ही आ गई, 101% समझ में आ गई। तो आप देखना कि आपको VXY के बीच में कितना वोल्टेज मिल रहा है? 10 वोल्ट। मतलब आपने जो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी बनाया है उसका कैपेसिटी कितना आता है? 10 वोल्ट। उसको बोलेंगे हम टोटल वोल्टेज बिटवीन द सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन आपको जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, पॉजिटिव में बोलो या नेगेटिव में बोलो, वो कितना मिलेगा? देखो, जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, करंट X2Y गया और Z डायोड D2 ऑफ होने की वजह से Z पूरा का पूरा वो बंद ही हो गया डायोड D2। तो अभी मुझे बताओ कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज? 5 वोल्ट। परफेक्ट। तो पॉजिटिव में 5 वोल्ट आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अभी देखेंगे थोड़ा सा, अगर मैंने इसको निगेटिव में भी लिया तो कितना आएगा? ये निगेटिव में यहाँ पर कितना आएगा? मतलब निगेटिव का पॉजिटिव होके आएगा, वो कितना आएगा? वो भी 5 वोल्ट आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है क्या? आपका जितना ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी है ना, उसके हाफ ही आउटपुट वोल्टेज आपको मिलता है। मतलब आप देखना तो टोटल 10 वोल्ट का आपका कैपेसिटी है, लेकिन आपको मिलता कितना है? 5 वोल्ट। तो इसको कहते हैं कि यू ओनली रिसीव द 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द वोल्टेज। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा क्या होता है ना, जब ये डायोड को रिवर्स बायस होना पड़ता है, एक कंडीशन अज्यूम करो कि ये डायोड को रिवर्स बायस होना पड़ता है। सेम वापस मैं सेम आपको सेम जगह पर लेके जा रहा हूँ, बराबर है? अभी सेम जगह पर लेके जा रहा हूँ। अभी सपोज हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन देखेंगे। अभी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका ये जो डायोड D1 है ये तो कंडक्ट हो गया, ये डायोड D1 कंडक्ट हो गया, मतलब ये इधर आपका RL है, और ये डायोड D1 कंडक्ट हो गया, मतलब ये शॉर्ट हो गया इस तरीके से। हाँ, लेकिन डायोड D2 कंडक्ट हुआ क्या? नहीं। तो डायोड D2 क्या है? ओपन है। तो अभी मेरा एक बहुत सही सवाल है जो आप मुझे बताओगे कि मुझे एक बात बताओ कि ये जो डायोड D2 है ना, डायोड D2, ये जो ओपन सर्किट तो हो गया, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अभी मुझे ये डायोड D2 के अक्रॉस का वोल्टेज यहाँ लिखना है। ये देखो, ये डायोड D2 जो मैंने ओपन किया ना, चाहिए तो मैं थोड़ा जूम करके आपको ये बताता हूँ। ये जो डायोड D2 मैंने यहाँ पर ओपन किया ना, ओपन, ये डायोड D2, मुझे अभी ये जो दो टर्मिनल है इसके अक्रॉस कितना वोल्ट आएगा वो बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से? ये वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट। कितना आएगा बच्चों? 10 वोल्ट। ओके, ये वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट। और ये डायोड D2 का दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, डायोड D2 हैज टू रिमेन ऑफ फॉर द वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। तो इसको बोलते हैं उसका पीक इनवर्स वोल्टेज, जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है ना, उसका पीक इनवर्स वोल्टेज, इट हैज टू बी मोर देन 2 VM। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 VM मतलब अगर आप इसे VM बोलेंगे, ये जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलता है, इफ यू से दैट दिस आउटपुट वोल्टेज इज प्लस VM, if you say that this output voltage is plus Vm, then the peak inverse rating of diode has to be 2 Vm। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कुछ बता रहा हूं आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी प्रॉब्लम्स क्या क्या देखे हैं इसके अंदर। पहला प्रॉब्लम हमने देखा जो आपको
तकलीफ देगा। मैं प्रॉब्लम्स लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। पहला प्रॉब्लम हमने देखा ट्रांसफार्मर कौन से टाइप का लगता है, तो आपको ये लगता है सेंटर टैप टाइप। कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर लगता है बच्चों? ट्रांसफार्मर कौन से टाइप का लगता है? सेंटर टैप टाइप का ट्रांसफार्मर लगता है। सेंटर टैप टाइप के ट्रांसफार्मर का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? उसका जो कॉस्ट है वो कैसा है? सेंटर टैप का कॉस्ट हाई है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हैज अ हाई कॉस्ट, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा जो पॉइंट हमने यहाँ पर देखा वो दूसरा पॉइंट है कि मुझे जो डायोड के रेटिंग लगते हैं, जो मुझे लगते हैं PIV रेटिंग of diode D1 and D2 which are required is equals to twice of the maximum value available at the output। 2 VM का रेटिंग लगता है। सो 2 VM का रेटिंग लगने, इसको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। इससे क्या हो जाता है, ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है और ये जो 2 VM का डायोड है, ये दोनों का भी कॉस्ट कैसे हो जाता है बच्चों? कॉस्ट हो जाता है हायर। सो द प्रॉब्लम इज व्हाट ऑफ द थिंग्स आर कॉस्टली। ये भाई साहब का नाम क्या देखा था हम लोगों ने? सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अभी इसको फुल वेव क्यों बोलते हैं ये सब आपको समझ में आ गया। आपको देखो यहाँ पर वेवफॉर्म देखना, जो वेवफॉर्म आपके सामने है, इस वेवफॉर्म में ये चीज क्लियर है कि पॉजिटिव का भी ये होता है और पॉजिटिव साइकिल का भी रेक्टिफिकेशन होता है, नेगेटिव साइकिल का भी रेक्टिफिकेशन होता है। दिस इज अ सेंटर टैप full wave rectifier। What we have seen over here, though you are applying AC supply between point X and Y, between point W and Y, what you are getting is a DC supply। And how is the nature of DC supply? You can see over here, it is a full wave supply। So what was the problem that we had discussed regarding to this? First issue is this particular circuit requires center tap transformer, and the diode which are used over here are expected to have the peak inverse voltage rating equals to 2 VM। तो इससे प्रॉब्लम क्या देखा हम लोगों ने? We are supposed to pay a higher cost for such kind of system। क्यों हायर कॉस्ट? बिकॉज ऑफ दिस। पहला पॉइंट है हायर कॉस्ट पे करने के लिए पहला जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर ये जो आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो, ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो आप यूज कर रहे हो, ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्राइस ज़्यादा है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हो गया ये जो दो डायोड है आपके, डायोड D1 एंड D2, ये जो आप यूज कर रहे हो, ये इन दोनों का प्राइस भी ज़्यादा है। तो अभी आपको क्या करना है ये तो क्लियर हो गया। अभी आपको ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी रिमूव करना है और ये डायोड D1 और D2 भी रिमूव करना है। अभी इसके लिए हम गए हमारे नेक्स्ट टाइप में। तो मैं आपके सामने नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्किट का पहले नाम लिखता हूँ। हमारे नेक्स्ट टाइप का सर्किट का जो नाम है वो है ब्रिज वेव। यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट्स, उसका नाम है ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर? तो उन्होंने 4 डायोड का एक ब्रिज बनाया। देखेंगे अभी हम लोग कैसे किया है वो। एक एक कंपोनेंट में ड्रॉ करूंगा ना तो समझते जाना, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर which is connected to 230 volt 50 hertz AC सप्लाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज AC mains। It is connected to the primary winding of a
ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन से टाइप का ड्रॉ करेंगे हम लोग? दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का स्पेशलिटी क्या होता है? इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, the number of turns on the secondary winding are lesser as compared to the number of turns on primary winding. अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक ब्रिज बनाऊंगा। And 4 diodes will be connected to this bridge. अभी ध्यान देना कि डायोड को लगाया कैसे जाता है। तो फर्स्ट diode D1 is connected as shown in figure. Then diode D3. अभी डायोड D1 और D3 को सेम बनाने का रीजन ये है, you can observe over here that diode D1 and D3 are pointing in a same direction. So they are connected in opposite branches. They are connected in opposite branches and they are pointing in the same direction. You can see over here. Then we will make diode D2 and D4. So they are also connected in opposite branches and they are also pointing in a same direction. तो डायोड के नाम मैंने क्या बोले, सभी लोगों ने सुने होंगे। पहला, दिस डायोड इज नोन एज डायोड D1, देन डायोड D2, D3 एंड D4। ये हो गए डायोड्स के नाम। अब लगाएंगे लोड रेजिस्टर। ये हो गया लोड रेजिस्टर RL। टर्मिनल के नाम पॉइंट X, पॉइंट Y। थोड़ा और इलेबोरेट करने के लिए यहां पर लिखेंगे W Z, यहां लिखेंगे पॉइंट A, पॉइंट B। तो ये रहा आपका सेंटर टैप का डायग्राम आपके सामने। अभी सवाल ये आता है कि सर इससे होगा क्या? बताता हूँ क्या होगा। सी, दो चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी देखी है, तो आपको सिस्टम को डिवाइड करना पड़ता है। नाउ what are the things that you need to understand is, see there are two cycles. One is positive half cycle, so you need to understand one condition for positive half cycle, and the another is negative half cycle. One is positive half cycle and another is negative half साइकिल। तो अभी पहले देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। जरा डायग्राम में देखना और मुझे बताना पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या दिखता है। हम लोगों ने क्या देखा था, कौन पॉजिटिव होगा? X विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू Y, देखा था ना लास्ट टाइम। सो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ता है, कंडीशन क्या आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में? पॉजिटिव हाफ साइकिल में आएगा द टर्मिनल X विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल Y। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो दो डायोड आपके ऑन स्टेट में जाएंगे और दो डायोड आपके कौन से स्टेट में जाएंगे? ऑफ स्टेट में। वो देखते हैं कैसे जाएंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? Y विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू X। तो यहाँ पर भी दो डायोड आपके ऑन स्टेट में जाएंगे और दो डायोड आपके ऑफ स्टेट में जाएंगे। ये चीज क्लियर है।
तो अभी पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल का देख लेना स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका x पॉजिटिव हो जाएगा। x पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर देखना मैं पॉजिटिव के लाइन को मार्क कर रहा हूँ। तो ये जो x है ये पॉजिटिव हो जाएगा तो आपकी पॉजिटिव लाइन ये यहाँ तक आएगी। अभी ये पॉइंट W पे देखना, पॉजिटिव कौन से डायोड के एनोड में कनेक्टेड है, D1 के। तो कौन सा डायोड पॉजिटिव होगा, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, D1, बराबर है। और ये नीचे देखना ये आपका Y है, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये Y जो निगेटिव हो जाएगा इसको मैं Z तक लेके आता हूँ। तो ये जो निगेटिव है ये Z, तो निगेटिव कौन से डायोड के कैथोड में कनेक्टेड है, D3 के। तो कौन सा डायोड आपका ऑन होगा, D3। ये इसको इसी तरीके से समझना पड़ेगा बच्चों। सो कौन से डायोड्स आपके ऑन हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस, कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे पॉजिटिव में, D1 एंड D3। बच्चों समझा क्या? ओके। अभी ऊपर वाला कौन सा वेवफॉर्म है, इनपुट वेवफॉर्म। लिखता हूँ बाद में मैं। इनपुट वेवफॉर्म में क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, नेगेटिव एंड सो ऑन, बराबर है। ये कौन सा वेवफॉर्म हो गया, दिस इज इनपुट वेवफॉर्म। इनपुट वेवफॉर्म बोलिए या इसे भी इनपुट बोला जाता है। और यहाँ पर मैं आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करने वाला हूँ, ये जो जगह है यहाँ पर। अभी देखेंगे कि होता क्या है स्टूडेंट्स। मुझे एक बात बताना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन पॉजिटिव रहेगा, x, और y कैसे रहेगा, निगेटिव। तो डायोड कौन से ऑन होंगे, हमने यहाँ पर देखे हैं D1 एंड D3 विल बी ऑन। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन से डायोड ऑन होंगे, सो वी नो डायोड D1, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखेंगे करंट कैसे फ्लो होगा। हाँ, करंट को जाना है X2Y, तो करंट को देखो कैसे फ्लो होगा। करंट को जाना है X2Y, ये करंट हो जाएगा X से स्टार्ट होगा, W तक पहुंचेगा। W तक पहुंचने के बाद यहाँ पर भी डायोड कौन सा ऑन है मुझे बताओ, D1 ऑन है। डायोड कौन सा ऑन है, D1 डायोड ऑन है। तो करंट कहाँ पर एंट्री करेगा, D1 में। ये W से लेके D1 में एंट्री करेगा, W से लेके D1 में एंट्री करेगा, और ये आ गया A तक। अभी A पर जब आएगा करंट, तो A पर आने के बाद उसको क्या दिखता है, डायोड D2 ऑन है क्या आपका, नहीं। तो D2 ऑन नहीं है, मतलब करंट कैसे जाएगा, R1 नहीं है, वो RL है। तो करंट ये A से लेके RL से लेके ये B तक आएगा। तो जैसे ही ये B तक आएगा, ये पॉइंट B तक आएगा RL से लेके। ये पॉइंट B तक आने के बाद यहाँ पर D3 ऑन है, तो ये इस तरीके से D3 में से फ्लो होगा, Z तक आएगा, और फिर Z की तरफ से वो कहाँ जाएगा, Y तक जाएगा। तो आपने अभी करंट का पूरा डायरेक्शन देख लिया, करंट कैसे जाता है X to Y, लेकिन करंट का पाथ आपको समझ में आ गया। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी करंट कैसे फ्लो होगा, X, W, D1, A, B, Z, Y। तो मैं यहाँ पर नीचे अभी उसका पाथ लिख रहा हूँ। ये दिमाग में बैठ गया ना आपके, कैसे जा रहा है करंट, वो करंट का पाथ यहाँ पर लिखेंगे, कैसे कैसे गया था आपका करंट, X, W, D1, A, B, D3, Z, Y. This is the path followed by the current. So what will happen? This will produce a positive half cycle. This will produce a positive half cycle across output.
तो ये जो आउटपुट का वेवफॉर्म है, ये आउटपुट के वेवफॉर्म में मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आने के बाद करंट का पाथ लिख सकता हूं बच्चों। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का करंट का पाथ याद है क्या किसी को? डायग्राम कहां से स्टार्ट हुआ था? XWD1A, वहां नीचे लिखा हुआ ये एक्चुअली, ये डायग्राम में आएगा XWD1A RL B D3ZY, D3ZY। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपने ये सेगमेंट को देखा ना, ये सेगमेंट को, सो द करंट विल फ्लो फ्रॉम A to RL to B. So the most important segment over here is the way in which the current flows through the load component RL. इस टाइम पे कंडीशन क्या क्या थी, कौन से दो डायोड ऑन थे? अभी मैं यहाँ पर सिर्फ ऑन डायोड का नाम लिख रहा हूँ। सो विच डायोड आर ऑन? सो देर आर टू डायोड्स विच आर ऑन। फर्स्ट डायोड इज D1 and second is D3. It means that D2 and D4 are off. Explained well. So now यहाँ पर देखना, अभी मुझे बताना ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल y विल बिकम पॉजिटिव एंड x विल बिकम नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव कहाँ से जाता है? y टू z। तो अभी z पे देखो पॉजिटिव आया, ये z पे यहाँ पर पॉजिटिव आया। तो मुझे एक बात बोलो, जब z पे यहाँ पर पॉजिटिव आया तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा? D2। और यहाँ पर देखना ये x पे निगेटिव आएगा, तो x का निगेटिव कहाँ से कहाँ तक जाएगा? W तक जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा डायोड ऑन होगा? D4, क्योंकि निगेटिव कौन से किसके कैथोड पे है? D4 के। सो इस तरीके से कौन से डायोड ऑन होने वाले हैं? D2 एंड D4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डायोड जो मेरे ऑन होंगे ना, वो ऑन होने वाले डायोड का नंबर है D2 और D4, ये लोग ऑन होने वाले हैं। ऑफ कौन से होंगे मेरे? D1 एंड D3, ये ऑफ होंगे। अभी करंट को कैसे जाना है? करंट को जाना है y टू x, देख लेंगे कैसे जाता है। y पॉजिटिव है, ये करंट यहाँ से y से स्टार्ट होगा, y से स्टार्ट होने के बाद z तक पहुँचेगा, y से z तक पहुँच गया। अभी z पे आने के बाद उसको कौन सा डायोड फ्री मिलता है? बोलो कौन सा डायोड मिलता है उसको? D2 मिलता है ना, D2 ऑन है ना। तो ये गया, ये Z से जाएगा, सीधा स्टार्ट होगा, ये जाएगा Z से A तक, ये गया Z से D2 के थ्रू A तक। अब यहाँ से ये RL से होते हुए B तक जाएगा, तो ये गया A से लेकर B तक। अब यहाँ पर आने के बाद कौन सा डायोड ऑन है? D4। सो ये यहाँ से गया D4 से W तक और बाद में W से X तक। तो अभी आपको समझ में आ गया करंट का डायरेक्शन कैसा है। करंट फ्लो हो रहा है Y से लेके X तक। अभी करंट का पाथ लिखेंगे नीचे यहाँ पर, कैसे गया आप अपने दिमाग में ये चला सकते हो। करंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ पर Y, Z, D2, A, RL, B, D4, W, X। तो अभी यहाँ पर जो मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करूँगा वो वेवफॉर्म भी मैं पॉजिटिव दिखाऊंगा, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये रहा मेरा आउटपुट वेवफॉर्म, करंट फ्लोइंग थ्रू। So during this, which diodes are on?
हमने अभी देखा निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कौन से ऑन है, तो डायोड D2 एंड डायोड D4, दो डायोड ऑन है। और अभी करंट का पाथ किसी को याद है क्या? करंट को स्टार्ट होना है Y से, याद तो होगा ही, YZ D2AB। तो ये यहाँ पर आता है, करंट स्टार्ट होता है Y से Z से D2 से पॉइंट A, फिर RL, फिर B, यहाँ तक याद है, D4WX, B से लेके D4, बाद में W और बाद में X। यहाँ पर भी जो गौर करने वाली बात ये है वो यही है कि ये देखो, ये करंट फ्लोइंग थ्रू द circuit flows from point A to B over here. In both the cases, the current flowing through load will keep its direction same, and that is the reason we say the AC has been converted into the DC signal. तो ये जो करंट है ना, ये करंट हमेशा कंपोनेंट RL में से कैसे फ्लो होगा? इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव लिख सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव लिख सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो आउटपुट वोल्टेज V0। तो ये कहानी है आपके फुल वेव रेक्टिफायर की। अभी अगर आपने यहाँ पर देखा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि आपने जो हाफ वेव में दो डिसएडवांटेजेस आपके हाफ वेव में आपको दिखे थे। एक था आपका डिसएडवांटेज कि आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पर वो डिसएडवांटेज भी आपका चला गया। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इन योर हाफ वेव रेक्टिफायर, ये ऊपर ही देखो आप, यहाँ पर देखो ये ऊपर हाफ वेव रेक्टिफायर में जहाँ पर आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ रहा है, तो ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेज भी गया। दूसरा डिसएडवांटेज जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कि आपको डायोड ऐसे यूज़ करने पड़ते हैं जिसका पीक इनवर्स वोल्टेज ट्वाइस VM होता है, वो भी चला गया। आपको अभी यहाँ पर 2 के जगह पर 4 डायोड लगे बच्चों, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है मालूम है क्या? 4 डायोड तो लग गए 2 की जगह पर, लेकिन फ़ायदा ये है कि ये डायोड का जो पीक इनवर्स वोल्टेज रहता है ये सेंटर टैप से कम लगता है, और इस वजह से आपको खर्चा कम आता है। और दूसरा, ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने यूज़ किया है ये आपको नॉर्मल टाइप का ट्रांसफार्मर लगता है, तो इसके भी पैसे आपको कम पड़ते हैं। और आपको जो आउटपुट मिलता है वो आप देख सकते हैं, यू आर गेटिंग अ सेम काइंड ऑफ आउटपुट इन फुल वेव ब्रिज वेव रेक्टिफायर। क्या नाम था टॉपिक का जो हमने अभी देखा? फुल वेव ब्रिज वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट समझ में आ गया? तो क्विकली जाएंगे अभी हम लोग और ये देखेंगे कि हमने क्या क्या किया है। हमने रेक्टिफायर में 3 टाइप के रेक्टिफायर देखे। ये पहला रेक्टिफायर देखा हम लोगों ने जो हाफ वेव रेक्टिफायर था। अभी मेरे ख्याल से आपके आंखों के सामने पूरी पिक्चर आनी चाहिए। ये पहला रेक्टिफायर देखा हम लोगों ने, इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने क्या देखा? देयर इज अ नॉर्मल डायोड, देयर इज अ नॉर्मल डायोड ओवर हियर। सो व्हाट दिस डायोड विल डू, as we can see here, this diode will conduct during positive half cycle. You can see here the diode will conduct during positive half cycle, and you will receive output during positive half cycle. But during negative half cycle, you can see there terminal B will become positive with respect to A, and the diode will become reverse bias. It will not conduct, and you will not get any output. So to avoid this problem, what we have done, we have seen a different type of full wave rectifiers. So here are different type of full wave rectifiers. What you are able to see here, half wave rectifier, only one diode D1. In full wave rectifier, there are 2 diodes. There are 2 types. One is center tap. ये देखो यहाँ पर क्या है, center tap full wave rectifier, और दूसरा यहाँ पर bridge wave, यहाँ पर ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर। तो इन दोनों का बाद में हमने अलग से एक्सप्लेनेशन देखा पेज नंबर 2 पे। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला? दिस इज योर सेंटर टैप रेक्टिफायर, एंड यू कैन, दिस इज योर सेंटर टैप रेक्टिफायर
and you can see here that in center tap rectifier what output you are getting. So output is also here. Output, what we can see here, during positive half cycle of the input signal, you can see in the second diagram, diode D1 is on, D2 is off, you get the output. During negative half cycle, diode D2 is on, diode D1 is off, and you get output across load resistor. Once again a rectified one. What was the disadvantage? So disadvantage has been seen over here. There is only one disadvantage you can see. First, center tap transformer, that is also of high cost, and the peak inverse rating of the diode required is 2 Vm, that is also. अभी यहाँ पर है ना एक चीज़ हम लिखना थोड़ा सा मैं उस टाइम पे भूल गया, उसको मैं अभी कंप्लीट कर देता हूँ बच्चों. जब मैं लिखता हूँ ना यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? X इज पॉजिटिव देन Y देन Z. मैंने ख्याल से कहीं ना कहीं तो मैंने ये नोट किया होगा, टर्मिनल X, कहीं ना कहीं तो मैंने नोट किया होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने लिखा ही नहीं होगा. लेट मी चेक. टर्मिनल X इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल Y एंड Y इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल Z. ये इसकी कंडीशन है. और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है? नेगेटिव हाफ साइकिल में इसके उल्टा है. Z इज पॉजिटिव with respect to Y is positive with respect to X. तो इसके हमने दोनों के प्रॉब्लम देखे. प्रॉब्लम ये है कि वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्राइस और डायोड का जो प्राइस है पीआईवी रेटिंग होने की वजह से, वो दोनों के प्राइस जो रेड डॉट जहाँ दिख रहा है ना, उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. ये प्राइस की वजह से क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग्स आर हायर and due to which you will face a problem. So to avoid that, we have gone with a bridge-wave rectifier. So here is your bridge-wave rectifier. So what you can see in the bridge-wave rectifier are, you are using 4 diodes, 1 bridge, and the transformer used over here is also normal. ये देखो लाल टिका आया है ना ट्रांसफार्मर के ऊपर. This also used is also normal transformer. कंडीशन क्या होता है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल? यहाँ पर भी मैंने लिखना चाहिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल x इज ग्रेटर देन y, ऊपर यहाँ पर डायग्राम में लिखना चाहिए. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल x इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल y, एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल y इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल x. अभी यहाँ पर देखना, अगर आपने ये सिर्फ वेवफॉर्म भी देखा ना तो भी पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है सर्किट का. तो अभी अगर आप ये डायग्राम देखोगे ना तो सिर्फ डायग्राम में पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है. तो आपका ना जो एग्जामिनर है ना, वो आपका एग्जामिनर आपको ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं. ये देखो, ये एरिया में आपका डायग्राम आ गया, ये एरिया में आपके वेवफॉर्म्स आ गए, और ये वेवफॉर्म्स के साइड नीचे ही आपने ये पूरी चीज़ें लिखे हुई है. तो अगर आप देखोगे ना तो ये इतने एरिया में आपका सब कुछ आ जाता है, आपको ज़्यादा देखने का. तो आपने तो अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ये जो आपका पल्सेटिंग डीसी आ रहा है ना बच्चों, ये पल्सेटिंग डीसी के साथ थोड़ा सा हमको हमको कुछ चीज़ करना है. मैं आपको दिखाता हूँ. पहले इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम ये देख लेते कि हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कैसे दिखता है, और फिर देखेंगे धीरे धीरे कि उसके साथ डील कैसे करना है. तो हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है जो अभी फिलहाल हमको मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से है. वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, then once again a positive half cycle, then once again a positive half cycle. This is happening for whom? This is happening for full wave rectifier. हाफ वेव के लिए कैसा है, ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फिर 0 है, फिर वापस वंस अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल. आपको समझा मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों? सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग फॉर योर दिस रेक्टिफायर आउटपुट. अभी एक काम करना, एक सिंपल सी चीज आपको करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है. ये जो आपका लोड रेजिस्टर आपको मिल रहा है ना, ये जो आपका लोड रेजिस्टर है यहाँ पर, ये जो आपका लोड रेजिस्टर है ना RL, ये इसके अक्रॉस ये सारे वेवफॉर्म्स जो मैंने आपको दिखाए वो आपको मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये RL में से ये करंट फ्लो हो रहा है IL, एंड यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है प्लस V0 माइनस.
तो अभी आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, मेरी बात देखना मैं क्या कर रहा हूं अभी। आई होप सभी लोगों का ध्यान है, देखना मैं कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, अब मैं ना इसके अक्रॉस ना एक फिल्टर लगा दूंगा। फिल्टर लगाना है मतलब क्या लगाना है, तो मुझे सिर्फ ये कैपेसिटर, अगर आपको दिखता है यहाँ पर दिखेगा, ये देखो दिख गए, दिख जाएगा अभी। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। अभी ये कैपेसिटर लगाने की वजह से आपका आउटपुट वेवफॉर्म कैसे चेंज होगा वो देखिए। मैं पहले हाफ वेव में दिखाता हूँ क्या होगा। आपका कैपेसिटर के बाद आउटपुट वेवफॉर्म देखना कैसे चेंज होगा। ये आपका जैसे ही आउटपुट वेवफॉर्म ऊपर जाएगा, ये आपका जैसे ही आउटपुट वेवफॉर्म ऊपर जाएगा, ये आपका कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका वेवफॉर्म नीचे जाएगा ना, तो ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो ये रहा, इस तरीके का आपका आउटपुट वेवफॉर्म रहेगा, वापस चार्ज, वापस धीरे धीरे डिस्चार्ज। नाउ विथ व्हाट रेट इट विल डिस्चार्ज एंड ऑल दिस थिंग्स, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर एंड वैल्यू ऑफ लोड। सिमिलरली फुल वेव में क्या होगा, देखिए फुल वेव में क्या होगा, ये रहा चार्ज हुआ, फिर ये धीरे से डिस्चार्ज हुआ, फिर वापस चार्ज हुआ, फिर ये धीरे से डिस्चार्ज हुआ, फिर ये वापस चार्ज हुआ, फिर ये धीरे से डिस्चार्ज हुआ। स्टूडेंट्स, इससे क्या हो जाएगा, अगर आप लोग इस आउटपुट वेवफॉर्म को देखोगे ना जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, सो ड्यू टू कनेक्टिंग दिस कैपेसिटर इन पैरेलल विद द लोड, ये बात याद रखना कि कैपेसिटर को हमेशा लोड के साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं और इंडक्टर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये दो चीजें याद रखना। तो अभी आपने इसको पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, ये हुआ आपका चार्जिंग पहला साइकिल, बाद में ये डिस्चार्ज थोड़ा सा ही हुआ, फिर वापस चार्ज हुआ, फिर वापस डिस्चार्ज हुआ, फिर वापस चार्ज हुआ, फिर वापस डिस्चार्ज हुआ, इस तरीके से। तो आपको इसमें बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका जो वेरिएशन इनटू द आउटपुट वोल्टेज जो पहले 0 से लेके मैक्सिमम था ना, वो भी इतने ही एरिया में आएगा। ये देखिए, this decides the value of ripple factor. So in this manner what you are doing, you are improving the value of ripple factor. तो आपका जो वेरिएशन इनटू द वोल्टेज होता है, so this variation into voltage is only this much, डेल्टा V। देखो आपने अगर अभी वेवफॉर्म कंपेयर किया तो ये येलो कलर का वेवफॉर्म देखो कैसे है, ये येलो कलर का वेवफॉर्म देखो कैसे है, ये येलो कलर का वेवफॉर्म जो अभी आपके सामने है ना, दिस येलो कलर वेवफॉर्म इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, 0 टू Vm। और अभी आपका नया वेवफॉर्म आया है वो देखो कैसा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपके सामने दो टाइप के फिल्टर रख देता हूँ बच्चों। उसमें से पहला है कैपेसिटर फिल्टर। तो कैपेसिटर फिल्टर कैसे कनेक्ट होगा, कैपेसिटर फिल्टर कैसे कनेक्ट करेंगे हमने देखा ऑलरेडी बच्चों। इन केस ऑफ कैपेसिटर फिल्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कनेक्ट वन capacitor value is C across load resistor RL. This is what we are going to do. So ये है मेरा लोड रेजिस्टर RL और ये RL के अक्रॉस में क्या करूंगा, कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा। सवाल ये आता है सर फिर इंडक्टर फिल्टर को कैसे लगाते हैं, तो इंडक्टर फिल्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सो ये रहा मेरा इंडक्टर L, I will connect this in series with my load resistor RL। इसको बोला जाता है इंडक्टर L और ये हो गया मेरा load resistor RL। So in this, when we talk about the LC filter, so you see here have one inductor indicated by value L, then have one capacitor indicated by letter C, and then connect inductor in series, capacitor in parallel across the load resistor RL। बच्चों समझ में आया, दिस इज योर लोड रेजिस्टर RL। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ फिल्टर बच्चों। ये जो पहला आपको दिख रहा है ना, ये जो पहला आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कैपेसिटर फिल्टर। पहले वाले को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर फिल्टर। ये जो दूसरे वाले भाई साहब है इसको बोलते हैं इंडक्टर फिल्टर। और जो तीसरे वाले भाई साहब है इसको बोलते हैं LC फिल्टर, वेयर इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, एक प्रॉब्लम इसमें होता है जो मैं आपको बताता हूं। अभी क्या होता है, मैं आपको आउटपुट वेवफॉर्म निकाल के दिखाता हूं विथ अ हायर वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टर।
अभी हायर वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टर होने की वजह से क्या होता है, हायर वैल्यू मतलब ज्यादा ओम्स, लेट अस से 1 किलो ओम्स। अभी क्या होगा, ये कैपेसिटर यहाँ तक चार्ज होगा और ये कैपेसिटर बहुत धीरे से डिस्चार्ज होगा। तो ये इस तरीके से आपका आउटपुट वेवफॉर्म आएगा, जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया। ये देखिए, ये कैपेसिटर का डिस्चार्ज रेट है ना, ये बहुत धीरे है। क्यों? क्योंकि आपने ना लोड रेजिस्टर का वैल्यू हायर रखा है, समवेयर 1 किलो। अभी आप क्या करो, लोड रेजिस्टर का वैल्यू घटाते घटाते आओ। अभी मैं ना उसका वैल्यू कम करूंगा, कम करूंगा, कम करूंगा, कम करूंगा। तो अभी लोड रेजिस्टर क्या हो गया, सपोज 1000 किलो ओम की जगह पर है ना वो 500 ओम्स हो गया। अभी ये देखो, अभी ये भाई साहब चार्ज तो हो गए, लेकिन ये यहाँ पर पहुंचने के बाद 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस था, तो आरसी टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, और 500 का हो गया तो आरसी टाइम कांस्टेंट का वैल्यू अलग आएगा। इसके लिए है ना ये भाई साहब जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये देखो, आपको समझ में आ रहा है क्या बच्चों? जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं, अभी तक डिस्चार्ज आपको दिखा नहीं। ये चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। अभी डिस्चार्ज देखो ये कैसे हो रहे हैं, समझे ना? आपने क्या कर दिया, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कम कर दिया, तो इसका डिस्चार्ज रेट क्या हो गया बच्चों, फास्ट हो गया। आप समझे? तो पहले वाले केस में जो रिपल का वैल्यू था वो देखो, पहले वाले केस में रिपल का वैल्यू कितना था और अभी के केस में रिपल का वैल्यू कितना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आपने लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू और कम कर दिया, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू और कम कर दिया, तो क्या होगा, कैपेसिटर आपका और फास्ट डिस्चार्ज होगा। तो ये देखो कैपेसिटर भी कहाँ तक उतर रहा है, चार्जिंग। हाँ, वेवफॉर्म आया, देखो पिंक कलर में वेवफॉर्म आया। अभी आप देखो तो आपको एक बात समझ में आ रही है क्या, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आप ये यहाँ पर देखना, जैसे जैसे आपका ये जो यहाँ पर देखना, जैसे जैसे आपका लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू आप कम कर रहे हो, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करने का मतलब है लोड का वैल्यू बढ़ाना। तो ये देखो, जैसे आप लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू बच्चों कम कर रहे हो ना, मतलब लोड का वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, वैसा आपका रिपल बढ़ते ही जा रहा है। तो अगर अभी मैं आपको इसको हाफ वे में समझाऊं ना, तो आपको थोड़ी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हाफ वे में क्या होता है, एक होता है मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल जो आएगा, हाफ साइकिल आएगा, निगेटिव हाफ साइकिल नहीं आएगा। ये हो गया मेरा हाफ वेव का वेवफॉर्म। मुझे जो दिखाना है वो तो मैं यहीं पर दिखा सकता हूँ। अब ये हाफ वे में आपको दिखाता हूँ, मैं पहला येलो कलर के इससे दिखाता हूँ। ये देखना, अपना पहला येलो कलर का जो हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस रखा था, तो ये क्या करेगा, चार्ज होने के बाद में ना इस तरीके से डिस्चार्ज होगा। तो ये हो गया आपका 1 किलो ओम का वेवफॉर्म, बराबर है। अभी आपने क्या किया, बाद में इस लोड रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम किया, तो ये मैं और नीचे आया, मैं आया ये 500 ओम्स तक। तो ये चार्ज होगा इस तरीके से, और ये डिस्चार्ज कैसे होगा, फास्ट होगा। वापिस ये चार्ज होगा, डिस्चार्ज कैसे होगा, फास्ट होगा। उसके बाद मैंने और रेजिस्ट और वैल्यू कम किया उसका, और वैल्यू कम किया, और कम किया, तो क्या होगा, चार्ज तो उसी स्पीड से होगा वो, लेकिन वो डिस्चार्ज फास्ट रेट से होगा। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? देखो, तो आपका रिपल फैक्टर एनी हाउ है ना, जैसे लोड का वैल्यू चेंज होता है ना, आपका रिपल फैक्टर है ना वैसे भी बदल रहा है, अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया तो अभी ये प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, प्रॉब्लम आपने बता दिया, समझ में आ गया हमको कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी करने का तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। तो डेफिनेटली तरीका तो है हमारे पास, तरीका तो है हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, हमको अभी मालूम है कि अगर इन चीजों को अवॉइड करना है, अगर मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको अगर डिस्चार्ज रेट कम करना है तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ाना है। सी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका अपने आप चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है, जिसका फास्टर रेट से डिस्चार्ज होता है, तो आप जितना कैपेसिटर बढ़ाओगे उतना आपको जो टाइम कांस्टेंट है उसका वैल्यू प्रॉपर अच्छा मिलेगा। लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है, कहाँ तक जाओगे। तो अभी देखना, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया, मैं हर चीज को दिखा रहा हूँ वापिस से। पहला फिल्टर जो मैंने आपको बताया वो हमने लिया था एलसी फिल्टर। अभी हम एलसी फिल्टर में क्या करते हैं, ये रेक्टिफायर के बाद में कनेक्ट होता है बच्चों। वी कनेक्ट वन इंडक्टर इन सीरीज एंड one capacitor in parallel along with the load resistor. We connect one inductor in series and one capacitor into parallel. ये हो गया मेरा एलसी फिल्टर। और ये जो पॉइंट्स है इनपुट के, यहां पर आपको
रेक्टिफायर का आउटपुट देना है। मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ये समझ जाना यहाँ पर, ये किसका आउटपुट है, रेक्टिफायर का। ये आपका रेक्टिफायर का आउटपुट। फिर सिर्फ ये टाइप रख के भी बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि आपने ये एक टाइप बना दिया मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आगे का फिल्टर उन्होंने बनाया, उसे बोला जाता है टी फिल्टर। अभी ये टी फिल्टर कैसा याद रखने का वो मैं आपको बताता हूँ। टी फिल्टर मतलब देखो, टी में क्या आपको दिखता है, ये टी में आपको क्या दिख रहा है, एक वर्टिकल डंडी है, दो हॉरिजॉन्टल डंडी है। वर्टिकल मतलब पैरेलल और हॉरिजॉन्टल मतलब सीरीज। तो आपको यहां पर दो सीरीज कंपोनेंट मतलब क्या आएंगे, दो इंडक्टर आएंगे। ये देखो टी के शेप में बना रहा हूं मैं, दो इंडक्टर आएंगे। सो ये आपके टी की दो डंडियां हो गई और एक कैपेसिटर आएगा, इसीलिए इसको टी फिल्टर बोलते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया? ये देखो टी का शेप है, तो ये हो गया L1 इंडक्टर 1, ये हो गया L2 इंडक्टर 1 और ये हो गया कैपेसिटर। ये हो गया मेरा टी फिल्टर। यहां पर आएगा मेरा लोड रेजिस्टर RL और दिस विल बी माय रेक्टिफायर का आउटपुट। ये हो गया टी फिल्टर। टी के बाद में आता है पाई फिल्टर। अभी पाई फिल्टर आप लोग मुझे बताओगे कि पाई फिल्टर कैसे आएगा। पाई फिल्टर, पाई में क्या है देखो आप, पाई फिल्टर में क्या दिखता है, एक डंडी वर्टिकल है और दो डंडी हॉरिजॉन्टल है। ये हो गया मेरा पाई फिल्टर। तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पाई फिल्टर में क्या होगा, एक इंडक्टर आएगा जिसे मैं बोलूंगा L और दो कैपेसिटर आएंगे, एक आगे एक पीछे। सो दिस विल बिकम कैपेसिटर C1 एंड दिस विल बी कैपेसिटर C2 और इस तरीके से दे विल बी कनेक्टेड अक्रॉस लोड कंपोनेंट RL। और यहां पर क्या आएगा, रेक्टिफायर का आउटपुट आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये देखो तीनों फिल्टर आपके सामने हैं। ये है आपका लोड रेजिस्टर RL, करंट कैसे जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है। तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव। अभी हम सब लोगों को ये मालूम है। सवाल ये है सर यहाँ पर कैपेसिटर कैसे लगेगा, कैसे लगाना है कैपेसिटर, सीरीज की पैरेलल, बोलो फटाफट। यस, पैरेलल कैपेसिटर लगेगा पैरेलल में। अगर आपको कैपेसिटर पैरेलल में लगाना है ना, तो ये इस तरीके से करो। ये होगी मेरी कैपेसिटर की प्लेट, ये हो गई इस भाई साहब का वैल्यू C, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट। बच्चों समझे क्या बोल रहा हूं मैं? इस तरीके से लगेगा आपका कैपेसिटर फिल्टर। और अगर इंडक्टर फिल्टर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, सीरीज में। तो इंडक्टर कहाँ डालेंगे, मैं अभी आपको RL ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये सेम RL ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जब आपको इंडक्टर फिल्टर लगाना है तो कैसे करेंगे, ये जो सेम RL है, ये जो आपके पास में सेम RL है, ये सेम RL के सीरीज में इंडक्टर लगा देना। मतलब ये इंडक्टर कैसे आएगा, ये रहा आपका लोड रेजिस्टर RL और इसके साथ में ये रहा आपका लोड रेजिस्टर RL और इसके साथ में ये इंडक्टर लगा देना L का। तो ये हुआ मेरा इंडक्टर फिल्टर सीरीज में और ये हुआ मेरा लोड कंपोनेंट RL। और ये जो मेरा करंट है, आउटपुट करंट जिसको मैं बोलता हूँ IL, वो दिखाते हैं। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव और ये आएगा वोल्टेज V0। अभी एक चीज को याद रखना, ज्यादा ही पढ़ रहे कुछ, एक चीज को याद रखना, ये कैपेसिटर पैरेलल में लगाते हैं और इंडक्टर सीरीज में लगाते हैं। सवाल ये आता है कि सर इन चीजों का क्या रीजन है, why we are connecting capacitor in parallel and why we are connecting inductor in series is capacitor has an ability to keep the voltage across it, to store the voltage across it. So what happens when you are connecting it into parallel, the voltage constant. तो आपका आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रखने का कोशिश आपका कैपेसिटर करता है। When you are having inductor, so inductor has an ability to keep the current through it constant. So when you connect in series, the current through the load resistor that will
that will flow will remain same. So that is the reason capacitor is connected in parallel and the inductor is connected in series.